have known and worked with you for almost 18 years now. How real estate has changed since the very first project that we did? See, real estate is like fashion and it keeps on changing. It keeps on evolving. So there has been a process last 2.5 decades. I mean, I've been practicing from 97. Not many people wanted to stay in a community. They wanted to stay separately. Because I've shown his Janapati to a very senior sponsor. And he's told me that there's some mistake in the So people will laugh on it, but I know that it is his DNA. तो उनको राहुल जी तो ऐसे बैठे हैं इनको बिगाड़ेंगे नॉर्मल काम को बिगाड़ देगा चलती हुई अच्छी कई बार किसी क्लाइंट को ये लगता है यार मेरा म्यूजिक तो बता रहे वो ओपन से रोज देता है एवरीथिंग मैं के नहीं बोल दूंगा मैं Hello people, so today we have Gyanin Singh Shekhawat ji from Ideas. He is the principal architect at Ideas and one of the prominent architects not just in Rajasthan but now in India. And this session is going to be exploring his personal side with the architecture, his projects and some other elements which are influencing real estate and the industry. So Gyanin ji, welcome to Thank you so much for 9 Degrees podcast. Click to know more. Thank you so much. So, how did architecture happen? And if you were not into architecture, where you would be? So I think architecture happened. I think a lot of credit would go to my dad, my father, because he's a civil engineer. And when we were getting into architecture, not many people knew about architecture. And early 90s, when I was completing my 12th standard, I was contemplating few more options. I was contemplating going for hotel management or maybe a dentist. And then suddenly something like this came up and my father suggested to me that this would be a great profession. And since he being into construction and he being a civil engineer, he a little bit knew about it and he guided me. And that's why it happened. And I would say coincidentally or luckily, I got into architecture. Are you glad that architecture happened to you? I am. Definitely. I am. I think I am very happy. I think that was the right step and my family guided me properly and I think I'm super happy about it. Great. So can you just take us back to your first project? What are the fond memories or anything related to that? So Ashwini ji, you will not believe my first project was my own house. So my parents were my clients and we had bought out one plot in Jaipur and I was completing my masters. I had completed my graduation. I was already an architect. I was doing my masters in Delhi and my parents wanted to build this house, a bungalow in Jaipur. And perhaps that was my proper first greenfield project, which I completed. So I would say my first project is my own house. Are you still living there? I'm still living there. You're Yes. still there. Yeah, I'm still great. living So you're basically reliving that memory again and again on daily basis. Actually, that house, the original design has also now got few layers because it has gone for alteration like couple of times. But the original intent is still there. Yeah. Okay. I still live that house on daily basis. Fantastic. So now we'd be talking about some real estate and architecture. So I have known and worked with you for almost 18 years now. How real estate has changed since the very first project that we did? See, real estate is like fashion and it keeps on changing. It keeps on evolving. Ji.
और जब हमने स्टार्ट किया था, when we started this work in like last of 90s, early I mean 2001, 2000, people were not ready for flats because जमीनें अवेलेबल थी, प्लॉट्स अवेलेबल थे, लोगों को घर बनाना, खुद की जमीन, खुद की छत, दैट वाज द कॉन्सेप्ट. एंड नॉट मेनी पीपल वांटेड टू स्टे इन ए कम्युनिटी एंड दे वांटेड टू स्टे सेपरेटली. खुद की छत होनी चाहिए, खुद का प्लॉट होना चाहिए, खुद की गाड़ी पार्किंग की स्पेस होनी चाहिए. बट धीरे धीरे जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, प्रेशर आया, प्राइसिंग बढ़ी, so this whole process of apartments and community living started growing, and that was the time where we also came into market and we were also doing projects like that. So it started like that, G+1 बन रहे हैं, G+2, G+3, and धीरे 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 people realized कि अभी apartment living भी एक अपने आप में way of life है. And then COVID में वापस there was a paradigm shift. Right. लोगों को वापस openness, wellness, खुलापन, balconies. So there has been a process last 2.5 decades. I mean, I've been practicing from 97. I mean, more than 27, 28 years. I have seen this whole concept of real estate, concept of living evolving. And जयपुर क्योंकि हम लोग NCR के पास है, हम लोग वहां से बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं, दिल्ली से, गुड़गांव से, बॉम्बे से. जी. तो धीरे धीरे अब वो पूरा प्रोसेस काफी अच्छा हो गया है, मैच्योर हो गया है, एंड लॉट ऑफ गुड प्रोजेक्ट्स आर आल्सो कमिंग. सो आई थिंक दिस इज इवॉल्विंग प्रोसेस, एंड आई थिंक जयपुर रियल एस्टेट इज इवॉल्विंग वेरी वेल, आई वुड से दैट. सो कैन वी से दिस थिंग कि जो जयपुर का अभी रियल एस्टेट जो सिनेरियो है, वो अपना जो करंट जो पोटेंशियल है, वो सही जगह पे उसका पोटेंशियल या इससे बेहतर हो सकता था? बहुत बेहतर हो सकता है, बहुत बेहतर होना भी चाहिए. क्या है कि मुझे अभी भी लग रहा है कि जो मेन प्लेयर्स होते हैं रियल एस्टेट के, डेवलपर, आर्किटेक्ट, डिजाइनर, अभी भी इनको काफी अंडरस्टैंडिंग और समझना जरूरी है. एनीबडी हु डजंट नो एनीथिंग अबाउट कंस्ट्रक्शन, उनको डिजाइन के बारे में आइडिया नहीं है, वो अगर प्रमोटर बनेंगे या डेवलपर बनेंगे, या जो ज्यादा घूमे नहीं है या ज्यादा एक्सपोजर नहीं है जी, तो जो क्वालिटी दिल्ली में है, एनसीआर में है, वुड से गुड़गांव में है या बॉम्बे में है, वो अभी भी हमें यहाँ आने में टाइम लगा. आई थिंक वी आर स्टिल maturing, we are still evolving. So I think, yeah, I would say there is still a huge gap. The kind of quality we are still getting, it could be still better. We have spoken about real estate in general. अभी हमने जो बात करी है, आर्किटेक्चर कैसे इवॉल्व हुआ है इस टाइम पीरियड में, राइट फ्रॉम द टाइम से 97, 98 since you started, and architecture has got multiple dimensions. It has got hospitality, it has got regular real estate, it has got town planning, or you know it definitely better. How it has evolved with the changing scenario. Like you said, apartments were there. What is now happening with what were the sizes of apartments then? What is the size or the requisites of apartments now? Or even if the villas are being made, how it has evolved, or rather how it has changed the architecture in itself. अश्विनी जी, क्या होता है कि the basic concept of architecture is doing a proper space planning for the inhabitants. जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, जी, मेन उद्देश्य और मेन इंटेंशन ऑफ द डिजाइन और द आर्किटेक्चर शुड बी एंड इज दैट आप ऐसा डिजाइन कर रहे हैं कि जो लोग वहां रह रहे हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर. एटलीस्ट फॉर मी दैट इज माय मंत्रा. एंड क्या हुआ है कि 97 से लेके आज 25-27 सालों के अंदर लोगों की एस्पिरेशंस भी चेंज हुई. जी, पहले लोग अलग तरीके से एस्पायर करते थे. शुरुआत में 2005-2010 में जब इकोनॉमी भी धीरे धीरे बढ़ रही थी, लोगों के पास पैसा आ रहा था, तो एस्पिरेशंस बढ़ते चले गए. जी. तो अगर हम देखें तो, एंड वी आर ए डेवलपिंग इकोनॉमी, और हम बहुत फास्ट तेज गति से बढ़ रहे हैं. यू नो, वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी. सो आपको ये सारी चीज हमारे आर्किटेक्चर में दिखेगी.
ये कहा जाता है कि आर्किटेक्चर इज द बोल्डेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन। करेक्ट। और हमारे यहाँ पर आप वो देखोगे कि वो बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंटली, बड़ा प्रोमिनेंटली दिखता है कि पहले किस तरीके के मकान बनते थे, कैसे इंटीरियर्स होते थे, कैसे डेकोर होते थे, कैसे बिल्डिंग के एलिवेशन बनते थे, और बीच में कैसे बन रहे हैं और अब कैसे बन रहे हैं। देन सिंस क्योंकि इकोनॉमी बढ़ रही है, डेवलपमेंट आ रहा है, पहले वो मटेरियल्स अवेलेबल नहीं थे। हम फ्लोरिंग का मतलब मार्बल ही लगाना है या ग्रेनाइट ही लगाना है। राइट। अब हमारे पास इतनी अच्छी तरह की टाइल्स आ गई हैं, ऐसी टाइल्स आ गई हैं कि जो पत्थर को भी माफ कर दे। पहले चाइना से आती थी, स्पेन से आती थी, अब इंडिया में बन रही है। वॉल पे टाइल्स लग रही हैं। लकड़ी के, पहले लकड़ी मतलब अगर एमपी टीक लेनी है या बर्मा टीक लेनी है, मैं सोचता अभी कोई बात ही नहीं करता जी, क्योंकि उसके भी इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं, एल्युमिनियम के इतने ऑप्शंस आ गए, प्रोफाइल्स इतनी अच्छी आ गई है। तो मेरा ये कहना है कि वैसे क्योंकि हम एक डेवलपिंग नेशन है, हमारे यहाँ पे चीजें स्टीरियोटाइप्ड नहीं है, मटेरियल्स चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है, इंस्पिरेशन चेंज हो रही है। तो ये बड़ा एक कांस्टेंट प्रोसेस है और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इवॉल्व होता जा रहा है, और वैसे वैसे आर्किटेक्चर भी इवॉल्व होता जा रहा है। आपके डिजाइनिंग के ऊपर बात करेंगे। यू हैव डन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। आपने रियल एस्टेट करा है, आपने हॉस्पिटैलिटी करा है। इज देयर सर्टेन डिजाइन फिलॉसफी दैट यू फॉलो? इज देयर एनी गाइडिंग प्रिंसिपल व्हिच कैन बी सीन थ्रू आउट योर प्रोजेक्ट्स? It's a very interesting question, Ashwini ji, and I really would like to answer that. मेरा मंत्र हमेशा मंत्र रहा है कि फॉर्म शुड फॉलो फंक्शन। और कुछ जगह ऐसा होता है कि फंक्शन फॉलोज फॉर्म। करेक्ट। वो हमारे कुछ है संगी साथी इस तरह की पैराबोलिक शेप बना देंगे कि आप उसको फिर फॉलो ही करते रहो। तो मेरा हमेशा से मानना है कि मैं डिजाइन जब भी कोई चीज को करने के लिए बैठता हूँ और मैं स्पेस को 3D में इमेजिन करता हूँ, तो मैं हमेशा ये देखता हूँ कि मैं यहाँ पर काम क्या होने वाला है। जैसे आज अगर हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पे क्या काम होने वाला है। अगर ये एक ड्राइंग रूम है या एक डाइनिंग टेबल है या एक स्टडी है या फॉर दैट मैटर पूजा है, किचन है, मैं ये देखूंगा कि वहां पे क्या फॉर्म मेरे को लेनी है जिससे उसका जो फंक्शन है वो वहां पे जो मुझे करना है, जो मुझे कार्य वहां पे करना है, जो मुझे एक्टिविटी वहां करनी है, वो ढंग से मैच हो जाए। सो मेरे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि मैं मेरे फॉर्म को वैसे डेवलप करूंगा कि मेरे फंक्शंस वहां पर ढंग से हो जाए। अगर मुझे कोई लिविंग रूम है तो मुझे गार्डन का व्यू मिल जाए, मुझे कोई पेड़ पौधे दिख जाए। राइट। मुझे अगर किचन है तो मैं चाहूंगा कि सारी चीजें मेरे को पास में मिल जाए, काम करने के लिए हैंडी हो, लेडी या जो भी वहां पे काम कर रहा हो। या फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई स्कूल डिजाइन कर रहा हूं तो मैं देखूंगा कि नेचुरल लाइट आ जाए, बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को नेचुरल लाइट मिल जाए, बार बार लाइट नहीं जलानी पड़े। तो मेरा हमेशा आइडिया कोई भी प्रोजेक्ट को, चाहे वो फ्लैट्स हो, स्कूल्स हो, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, हमने अभी जैसे कोचिंग हब किया है, या कोई क्लब बिल्डिंग है या 5 स्टार होटल्स है, मैं हमेशा ये इमेजिन करता हूं कि यहाँ जो फंक्शन होने वाला, जो उसका मेन कार्य, जो उसकी वहां पे जिसके लिए डिजाइन हो रहा है, वो कैसे हो पाएगा, और फॉर्म को उसके इर्द गिर्द ही में बनाऊं या डिजाइन करूं। दैट इज माय मंत्रा एंड दिस इज बेसिकली basis of all my designs. Excellent, lovely to understand that. So it would be very safe to say that utility and the function is the epicenter of your design. Correct, exactly. If you were to describe your entire designing in just 3 words, what would be those 3 words? The space needs to be welcoming. Okay. My second word would be celebrated. Okay. I'm able to design the space which is still celebrating. And third would be, I would say, open, nicely ventilated. जो एंथ्रोपोमेट्रिक के हिसाब से मुझे डिजाइन करना, नाइस हो, परफेक्ट हो, ओपननेस हो. So I would say welcome, celebrated, celebration, and open. How a design in its purest or untalked about or form affects a user's life? Some designs are very visible and you can actually see the direct interaction with the user. But we would like to understand that how does it affect? First, you would influence architecture. ये बड़ा कहावत है कि पहले लोग इन्फ्लुएंस करते हैं आर्किटेक्चर को.
Down the line, architecture will influence people. And this is how it has to be. Okay. This is how it has to be. Architecture का जो ओरिजिनल थीम, जैसे मैंने शुरू में भी बोला, इट्स टू अपलिफ्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ. जी. And architecture should be such that it is elevating, and it should elevate the quality of standard or standard of living. जी. वो बड़ा जरूरी है. और जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कैसे इन्फ्लुएंस करता है. जैसे अपने एक अपार्टमेंट बनाया, लिफ्ट लॉबी, एक आपने लिफ्ट लॉबी मुश्किल से छोटी सी बना दी 10 फुट बाय 10 फुट की, और उसमें 4 फ्लैट्स की एंट्री कर दी, तो क्या होगा कि लोग आएंगे, खट अपने फ्लैट से निकलेंगे, लिफ्ट पकड़ेंगे, नीचे चलेंगे. और वही अगर आपने एक वहीं पे थोड़ी सी एक बड़ी लॉबी बना दी, एंड यू हैव गिवन some sitting space there, so people will come there, maybe wait for it, and then somebody else is coming, so they would say hello to him, they would interact. For example, that community feeling will arise. Right. ग्राउंड फ्लोर पे आए आप, सीधा आए स्टिल्ट फ्लोर पे आके अपना सीधा बाहर निकल गए, और वहीं आपने एक होल्डिंग स्पेस बना दी है, कुछ फाउंटेन लगा दिया, कुछ वहां पे बैठने की चेयर्स लगा, सो पीपल विल कम, सिट, चिल, मीट अदर, सो दे वुड इंटरैक्ट. सो आर्किटेक्चर अल्टीमेटली, आपने कई स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस में भी देखा होगा, स्कूल्स में या कॉलेजेस में, कि पतले पतले कॉरिडोर है, रूम में बाहर कमरों क्लासेस से लोग आए और निकल के चले गए, और एक आप वहीं बाहर एक होल्डिंग स्पेस बनाते हो, तो ऑल दी पीपल, बच्चे वहां आ रहे हैं, चिट चैट कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं. सो आर्किटेक्चर विल डेफिनेटली इम्पैक्ट द वेलबीइंग or the community life or standard of living or the quality of living of each and every one using that piece of architecture. आपके अभी इस बात करते करते मेरे को नानी का घर याद आया. सो बहुत पुरानी बात है कि वो मोहल्ले हुआ करते थे, मोहल्ले में एक चौक हुआ करता था, जनरली एक सेंटर पॉइंट हुआ करता था. एंड ये जो अभी आपने कम्युनिटी बिल्डिंग वाली जो बात कही, सो आई रिलेटेड इट विद दैट कि कोई भी चीज होती थी तो उसी चौक के अंदर सारे घर, सब लोग इकट्ठे हो जाते. एग्जैक्टली. सो आई कुड रिलेट दिस लॉबी. हमारे यहाँ पे हवेली कल्चर या कोर्टयार्ड प्लानिंग बड़ी फेमस है. सो व्हाट इज कोर्टयार्ड प्लानिंग? देयर इज अ स्मॉल कोर्टयार्ड व्हिच इज ओपन टू स्काई, एंड देन यू हैव गॉट रूम्स अराउंड इट. द आइडिया ऑफ कोर्टयार्ड, देयर वर few concept behind this courtyard planning. One, कि 2 फ्लोर का घर है, बीच में कोर्टयार्ड है, तो कोर्टयार्ड शेडेड है, धूप डायरेक्ट नहीं पड़ रही, राइट, तो ठंडा रहता था, तो आसपास के कमरे जो है वहां से ठंडी हवा लेते थे, कमरे ठंडे होते थे. राइट. और दूसरा आइडिया था कि रात को सब लोग वहां पे सब साथ सोते थे, गप्पे मारते थे फैमिली वाले, राइट, क्योंकि तब एसी कूलर तो थे नहीं पुराने जमाने में, और सब लोग वहां बैठते थे, इकट्ठे होते थे और एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे. अब क्या हो गया, कॉरिडोर प्लानिंग हो गई है, घरों में सब अपने अपने कमरों में बंद है, आए और सीधा बाहर निकल गए. तो अब ये है घर के लेवल पे. कॉलोनी के लेवल पे आओ तो वहां पे चौक होते थे जहां लोग इकट्ठे होते. आपको जयपुर वॉल्ड सिटी का मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ. चौपड़ जो बनी, चौपड़ में तो आया, ट्रैफिक बना के निकल गया, पर आप चौपड़ में देखोगे चारों कोने में खंदे हैं, जिनको जो चौखट, उनको हम खंदे बोलते. वो क्यों थे? कि सारे लोग वहां इकट्ठे हुए हैं, कोई प्रोसेशन निकल रहा है तो लोग वहां बैठे हैं, देख रहे हैं, या वहां पे शाम को एक एक्टिविटी हो रही है, या तो ये आपस में, क्योंकि अल्टीमेटली आदमी जो है या जो ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल, तो वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करने की इंटरैक्टिव स्पेसेस मिल जाती है. तो आर्किटेक्चर बड़ा एक फैक्टर है, एट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द वेलबीइंग ऑफ द होल सोसाइटी. तो इस तरह की चीजें बड़ी इम्पैक्ट करती है, और आप कई ऐसे एग्जाम्पल्स है जहां आप देखेंगे कि आर्किटेक्चर ने क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे सुधारा या बिगाड़ा है. Right. तो आपको समझ में आएगा कि आर्किटेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टू इम्पैक्ट एनीबॉडीज लाइफ. अभी आपसे बात करते करते एक चीज जो मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे, कि क्या ऐसा भी हुआ है या हो रहा है कि जहाँ आर्किटेक्चर जो है वो एक नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस कर रहा है कम्युनिटी लिविंग को, बिकॉज द स्पेसेस आर रिड्यूसिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज स्केर्स नाउ. So not just really architecture, but yeah, I would really like to understand this. So yes, I would agree this trend is increasing, but having said that, I would tell that it is still in the hands of the builders and architects and promoters to still design in such a fashion that level of intimacy, level of interaction, or that community bonding is still made available. So I think this is all because of IT, or
मे बी न्यूक्लियर फैमिलीज एंड अकेला आर्किटेक्चर इसके पीछे, क्योंकि आर्किटेक्चर अल्टीमेटली फॉलो करता है आपकी कमांड को, आप क्या कमांड दे रहे हो उसको। राइट। तो मुझे लग रहा है कि ये एक फैशन बन गया है इस तरीके का, लोग अपने आप में रहने लग गए हैं, फैमिली साइजेस छोटे हो गए हैं, ज़्यादा लोगों से बात करके राजी नहीं है। तो आई थिंक दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, बट थ्रू आर्किटेक्चर वी कैन स्टिल ब्रिंग a paradigm shift in this whole philosophy. We come from a state which is rich in architecture, rich in heritage, rich in tradition. Is government policy in a way helping us enough? Could there be a scope of doing more? Could we take our heritage to the world in a more better way? See, अभी हमारे यहाँ पे बिल्डिंग बायलॉज में वापस कुछ छोटे मोटे चेंजेस हुए। I will not like to comment on the quality of those changes and quality of the bylaws. ठीक है, हर गवर्नमेंट के या जो भी वहाँ पे अथॉरिटी में लोग होते हैं उनका अपना एक सोच होता है, अपना एक वर्जन होता है इस काम को करने के लिए। हाँ, डेफिनेटली मेरे कुछ उसमें इश्यूज हैं। मैं चाहता हूँ कि सिटी अब वर्टिकल ग्रो करे। बोलते सब है वर्टिकल ग्रो करना है, वर्टिकल ग्रो करना है, पर जो भी पॉलिसीज आती है वो अल्टीमेटली ऐसी आती है कि सिटी वापस हॉरिजॉन्टल ग्रो होता है। वर्टिकल ग्रो नहीं हो पा रहा है, हॉरिजॉन्टली ग्रो हो रहा है। वो कुछ भी बोले अथॉरिटीज वाले कि हम इसको वर्टिकल बनाना चाहते हैं, बट द बिल्डिंग बायलॉज एट द मोमेंट आर नॉट एनकरेजिंग। वो बहुत एनकरेज नहीं करते वर्टिकल जाने के लिए, वो अभी भी हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट के। बट मेरा कहना है कि मेरे लिए रादर इम्पॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज को एग्जीक्यूट कैसे कर रही है, चाहे वो मास्टर प्लान का मैटर हो, चाहे उसके एग्जीक्यूशन का मैटर। अभी भी आप देखेंगे बहुत सारी जगह मास्टर प्लान में उन्होंने रोड्स डाल दिए हैं, मेजर रोड्स डाल दिए हैं, बट रोड्स वो मौके पे है नहीं जी। कोई ना कोई कारण से वहां पर वो रोड्स बनी नहीं है या अथॉरिटीज ध्यान नहीं दे रही है। देयर आर लॉट ऑफ मिसिंग लिंक्स। हर बार अपन सुनते हैं, पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट मिसिंग लिंक्स बना रही। सो अल्टीमेटली जब तक आप रोड नेटवर्क जो आपने डिजाइन किया वो नहीं बनाएंगे, नहीं पूरा करेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा, डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा जी। पेपर पे बनाने से कुछ नहीं होगा, वो मौके पे भी काम होना चाहिए। आई थिंक फॉर मी दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर अपन गवर्नमेंट इंटरेक्शन की बात करते हैं तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। गवर्नमेंट शुड रियली वर्क ऑन पुटिंग अप द इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको डालना। और कहीं पे फ्लाईओवर्स बनने, एलिवेटेड रोड्स बननी है, मेट्रो बननी, जो भी, सो दैट हैज टू बी डन प्रॉपर्ली, नंबर वन। नंबर टू, द होल प्रोसेस ऑफ टेकिंग परमिशन। कहते हैं सिंगल विंडो, ये वो, राइजिंग राजस्थान में भी हमारे खूब सारे प्रोजेक्ट राइजिंग राजस्थान में साइन हुए हैं, हॉस्पिटैलिटी के स्पेशली। बट टू गेट अप्रूवल्स, टू गेट परमिशन इज अ डिफिकल्ट टास्क। द ग्राउंड रियलिटीज आर डिफरेंट। इतना इजी काम नहीं होता है। अप्रूवल्स में जबरदस्ती वो आपको कहेंगे फॉरेस्ट की एनओसी लाओ, एनवायरमेंट की लाओ, ये लाओ, एंड इट्स अ ह्यूज प्रोसेस। स्टिल वी हैव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हम अभी भी बहुत पीछे। मुझे ध्यान है, मैं कम से कम भी 4-5 होटल्स कर रहा हूँ जहाँ पे 400-500 करोड़ रुपया क्लाइंट लगाने वाले हैं या इन्वेस्टर्स लगाने वाले हैं सिटी के अंदर, बट दे आर ब्लीडिंग। उनके परमिशंस नहीं है। कभी कहते हैं फॉरेस्ट की एनओसी लाओ, कभी एनवायरमेंट की एनओसी लाओ। एनवायरमेंट की एनओसी बिकॉज ऑफ सम रीजंस मिल नहीं रही है, देयर इज सम इशू गोइंग ऑन, इतनी जल्दी परमिशंस नहीं आ रही। सो आई थिंक फॉर मी, आई वुड से व्हाटएवर पॉलिसी गवर्नमेंट यू वांट टू मेक, बना दिया। प्रोसेस को फास्ट करो, अप्रूवल्स फास्ट होना, 1 महीने में अप्रूवल्स आना चाहिए। वो क्यों नहीं आता? करना उनको वही है जो करना है, होगा वो पूरा प्रोसेस 1 महीना की जगह 6 महीने में होगा काम। चाहे वो बिल्डिंग प्लान अप्रूवल हो, चाहे एनवायरमेंट क्लियरेंस हो, चाहे फॉरेस्ट की एनओसीज हो, कोई भी एनओसीज हो, प्रोसेस, सर्टेन एनओसीज आर और सर्टेन परमिशंस आर वेरी डिफिकल्ट टू गेट। Could this be considered as a roadblock in Rajasthan's growth? Definitely, I would say that. That is time bound होना चाहिए। Ease of doing business में ये कहा है कि आप उसको काम को 1 महीने में या 2 महीने में कंप्लीट करो, पर नहीं होता। हम स्ट्रगल करते हैं। और मैं सोच रहा हूँ, हम तो कंसल्टेंट है, बेचारा जो बिल्डर है, जो प्रमोटर है, उसकी हालत क्या है। हम लोग कुछ रणथंभौर में प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, हम वहाँ पे कुछ 5 स्टार होटल्स बना रहे हैं, बहुत स्टेट ऑफ आर्ट होटल्स बना रहे हैं, ड्यू डिलीजेंस से बना रहे हैं, ढंग से बना रहे हैं, बिल्डिंग बायलॉज में कोई वायलेशन नहीं कर रहे, पर बेचारों को लैंड यूज चेंज इजीली नहीं मिलता है, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल फास्ट नहीं होता। आई थिंक दैट रियली नीड्स टू बी वर्कड अपॉन। उस पर काम होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्डिंग बायलॉज ठीक है, मतलब जो बने, आपने जो बना दिए ना, ठीक है सर,
जो कहते हैं ना, हमने टोल डाल दिया, हम 200 रुपए का टोल लेंगे गाड़ी, हम 200 रुपए देने को तैयार है, हमारी गाड़ी तो पास ऑन होने दो सर, हमने स्टिकर लगा रखा है, हमारा जी फास्टैग लगा हुआ है, हम पैसे दे देंगे 200 रुपए और हमको निकल जाने दो ना। हम बड़ा जैसे वो बूम बैरियर जो है वो बड़ा मुश्किल से खुलता है, तो हम I can see frustration on your face. I am मतलब वो जो इकोनॉमी, और इन सब चीजों से इकोनॉमी बढ़ेगी, जीडीपी उसी से बढ़ेगी, कितने लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑक्यूपेशन मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये जो जीडीपी हमारी धीरे बढ़ रही है या जो इकोनॉमी धीरे बढ़ रही है, सब रीजंस है उसकी। अल्टीमेटली काम होगा वो, पर कब होगा? जो काम 2 महीने का 2 साल में होगा। Got it. कुछ बायलॉज और रेगुलेशन से रिलेटेड एक सवाल मेरे अभी मन में जो है वो ये है कि you are a designer, you are a consultant. Are bylaws and definitely bylaws and regulations are necessary, but are these bylaws and regulations frustrating, or do they restrict designers? Do they restrict architects? As I would say, from the design freedom or not all the points, though there are few things which sometimes frustrate me, but I still take them. It's okay, because ultimately क्या होता है कि बिल्डिंग बायलॉज, जो बिल्डिंग रेगुलेशंस होते हैं, ये मास्टर प्लान, जो हमारा बेसिक, जो हमारा ग्रंथ है, मास्टर प्लान होता है एक सिटी के डेवलपमेंट का, उसको अचीव करने के लिए बिल्डिंग रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। दैट इज स्टिल ओके, आई एग्री। मेरे लिए जो फ्रस्ट्रेटिंग होता है, दैट इज टू गेट दोज परमिशंस, टू गेट देम गोइंग, टू गेट दैट अप्रूव्ड। मेरे लिए इज नॉट, मैं कहता हूं कुछ भी आपने बायलॉ, आप कहते हो 5 फुट की बैल्कनी फ्री दोगे, 6 की नहीं दोगे, 3 की, आपको 5 से कम, मैं सारी चीजों को मानने को तैयार हूं। मेरा अप्रूवल सिस्टम फास्ट होना चाहिए, वो हम यहाँ पे लैक करते हैं राजस्थान। सो ये अगर अप्रूवल सिस्टम फास्ट होता है तो आर्किटेक्ट्स के लिए या कंसल्टेंट्स के लिए शायद उनका जो करियर स्पैन है वो ज्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि दे वुड बी एबल टू डू मोर। आपको ये बात देखनी पड़ेगी कि ये सारी बातें, ये सारी चीजें अपॉर्चुनिटी की, राइट, और अपॉर्चुनिटी एक टाइम के लिए आती है जी। हमने देखा है कि हर 5-7 साल में कभी कहीं इराक वॉर हो गया पहले जैसा, अफगानिस्तान वॉर हो गया, अभी यूक्रेन वॉर हो गया, हम भी वी वर इनटू दैट काइंड ऑफ अ थिंग, बट सो सर्टेन, देन कोविड आल्सो हैड कम, दैट वाज द मेजर। सो कई इस तरह के डिसरप्टर्स आते हैं इकोनॉमी को स्टॉल करने के लिए। पर मेरे को ऐसा लगता है कि एटलीस्ट जो चीजें अपने हाथ में है वो काम तो फास्ट हो जाए जी। तो अगर ये सिस्टम फास्ट हो जाए, जैसे कई कुछ सिटीज में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, चेन्नई में है, हमारे फॉर दैट मैटर बॉम्बे में भी है, गुजरात फॉर दैट मैटर, ऑनलाइन अप्रूवल सिस्टम 1 महीने में आएगा ही। ऐसा अगर कोई सिस्टम हो तो काम फास्ट हो सकता है। अब ये मतलब जो करने वाले लोग हैं, जो पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, दे नो इट बेटर देन व्हाई इट इज नॉट गेटिंग डन। Where do you think there is more room for creativity, experimentation, and to, in general, play around? I think this is not related to private or public. Okay. It is related to the person whom you are reporting to. I worked on certain government projects wherein the person whom I was reporting to was a very generous, very well-informed person, and he gave me that freedom to work and make and design that fashion, and I was able to achieve. Right. And then there were certain people in the government where I could not do much because of their own frame of set of goals they had in their mind. Same goes for private sector. Certain clients will give you that freedom. Certain clients will not give you that freedom. So again, I would say it is not public or private. It depends upon who's your immediate client and to whom you're reporting. Actually, who's signing your check, I would say that. Right. So if that person is fluid, he's open to ideas, he's progressive, I think you will do wonders, and you have all the freedom in your hand in that case. How do you balance your design philosophy with this heritage aspect and the modern contemporary design aesthetics? Ashwini ji, I've been born and brought up in Jaipur, and I would consider myself lucky, and I think all the people who live in Jaipur or been
लिविंग इन जयपुर कंसिडर देमसेल्फ लकी बिकॉज हम एक ऐसी जगह है जो अपने आप में इंस्पायरिंग है, अपने आप में वहाँ पे एक स्टोरी टेलिंग है, जी अपने आप में एक इमर्सिव एक्सपीरियंस है, जी अपने आप वो एक यूनिवर्सिटी है। हम्म, तो मैं कभी भी उससे ऊपर नहीं आ पाया और मेरे डिजाइन में हमेशा जयपुर, यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ के इथॉस, यहाँ का जो विजडम है, वर्नाकुलर विजडम है, यहाँ की जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है या जो स्टाइलिंग है या जो वो मुझे कभी भी मेरे को छोड़ नहीं पाई और मैंने कभी उनको छोड़ा नहीं। तो मेरी फिलॉसफी में, और मैंने मेरी जब मास्टर्स करी थी और मेरी थीसिस थी वो भी जयपुर वर्ल्ड सिटी पे थी, तो मेरे में रची बसी गई। अगर मैं बात करूं तो दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ जयपुर एंड इट्स आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग प्रिंसिपल एंड द प्रिंसिपल ऑफ 9 स्क्वायर्स एंड वास्तु पुरुष मंडला एंड this is embedded in me, in my life, and I take inspiration, a huge inspiration from everything. I mean, the concept of bazaar, the concept of streets in the walled city, the chopper, the city palace, for that matter, concept of Amer Fort, that Right. matter. मुझे ये हमेशा बड़ा इंस्पायर किया और बड़ा मेरे को इसने हवा महल एंड दैट कोर्टयार्ड्स एंड हवेली, इन सब ने मुझे हमेशा इंस्पायर किया और मैंने वो उसको हमेशा अपने जहन में रखा है। तो मैं मानता हूँ कि मेरी, चाहे मैं मॉडर्न सोच से कोई बिल्डिंग को डिज़ाइन करूँ या अर्बन सोच से मैं डिज़ाइन करूँ, मैं हमेशा उसमें मेरी जो एक फीलिंग होती है कि कैसे कम्युनिटी लिविंग देनी है, कैसे इंटरेक्शन करना है और कैसे ओपन इंटरफेस होना चाहिए ओपन स्पेसेस का और कवर्ड स्पेसेस का, वो हमेशा मेरे जहन में रहा और मेरे फिर डिज़ाइन फिलोसफी में रहा है। तो मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ इस काम को। इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल है, डू यू थिंक ये जो अभी नई लीग है, न्यू जनरेशन ऑफ आर्किटेक्ट्स, दे आर एबल टू अलाइन देमसेल्व्स या उनके डिजाइन्स वो अलाइन कर पा रहे हैं विद द हेरिटेज ऑफ जयपुर? और फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं बहुत यंग आर्किटेक्ट्स के काम को, जयपुर के यंग आर्किटेक्ट्स के काम को देख नहीं पाया हूँ, क्योंकि सब अपने अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। दे डूइंग गुड जॉब, क्रिएट जॉब्स, और फ्लैशी चीज़ें भी बन रही हैं, सटल भी बन रही है। आई थिंक नई जनरेशन के, क्योंकि मेरा अभी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता नहीं है, हम भी एक क्लोज डोर में रह गए कि जो हमारा ऑफिस या जो मेरी टीम क्या सोचती है और हम क्या सोचते हैं, हम उसी फिलॉसफी के साथ चल रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा उसके बारे में आइडिया नहीं है, बट स्टिल आई सी सम गुड इंटीरियर डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स, आई सी सम नाइस कैफेज एंड रूफटॉप रेस्टोरेंट्स एंड रूफटॉप बार्स और कैफे। सो मुझे लग रहा है सम हवेलीज हैव आल्सो कम अप, कुछ लोग अच्छी पुरानी हवेलियों को सिटी के अंदर रिस्टोर कर रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आई एम श्योर कुछ लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं, एंड वेरी इंटरेस्टिंगली सम न्यू प्रोजेक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कमिंग। सो इट इज अगेन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट क्वालिटी का काम होना अभी आई थिंक स्टिल it's there. There is a lot of buzz around minimalism and contemporary designing. Because of this minimalism, are people or designers finding an easy way out of not getting into the detailing? और let me put it, मेरे को इसको दूसरे शब्दों में अगर मैं डालूं कि क्या मिनिमलिज्म की वजह से जो डिज़ाइन के अंदर जो रिचनेस थी, जो एक्सपेरिमेंटेशन था, is it dying because of that? I would not say that. जैसे मैं आपको बताऊं, किसी ने कोई फ्लावर पैटर्न का शर्ट पहना है और थोड़ा फैंसी कपड़े हैं, और कुछ दिनों बाद यू फाइंड हिम वेयरिंग ए ब्लैक शर्ट और ए प्लेन कलर शर्ट, तो अपन ये नहीं कह सकते कि आज इसने मिनिमलिस्टिक काम कर लिया या आज ये रंगीन नहीं दिख रहा, या सो आई थिंक दिस इज अगेन your persona which is reflecting on architecture. Sometimes minimalistic is also design. Right. That's also one way of designing, one way of saying, conveying things. So depend ये करता है कि आप ultimately intent क्या बता रहे हो। आज for example you're doing some work in Rambagh, maybe you're doing a restaurant in Rambagh, it has to be flamboyant, it has to be
flashy, it has to be bold, it has to be royal, it has Larger to be than life. larger than life. और वही अगर आप एक रेस्टोरेंट बना रहे हैं, फर्ज करें जयगढ़ के अंदर और नाहरगढ़ में, तो यू कैन स्टिल गो फॉर मिनिमलिस्टिक, यू कैन स्टिल गो फॉर रगड, हाँ, यू कैन रस्टिक, आप उसको कर सकते हो. सो अगेन आप स्टोरी टेलिंग क्या कर रहे हो? सी मोस्ट इंपॉर्टेंट अश्विनी जी है स्टोरी टेलिंग. व्हाट इमर्सिव एक्सपीरियंस यू आर लुकिंग एट. इंपॉर्टेंट क्या है? बैलेंस, हार्मनी, ये इंपॉर्टेंट होता है. कलर कॉम्बिनेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट. प्रपोर्शन, स्केल, दैट इज इंपॉर्टेंट. वो आप बिठा पाए तो फाइन. अब और उस कॉन्टेक्स्ट में वो चीज अच्छी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि कॉन्टेक्चुअल कैसी है, उस कॉन्टेक्स्ट में वो अच्छी लगनी चाहिए. राइट. मिनिमलिस्टिक चलेगी. आज जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कुछ होटल ब्रांड्स हैं जैसे कि अंदाज, एक हयात का ब्रांड है, बड़ा मिनिमलिस्टिक आर्किटेक्चर, right. इंटीरियर डेकोर उनका मिनिमलिस्टिक होता है. पर वही जैसे आप JW मैरियट पे आ जाएंगे या ताज लग्जरी पे, तो वो थोड़ा फ्लैम्बॉयंट, लार्जर देन लाइफ पे आ जाएगा, तो वहां वो चीज नहीं चलेगी. सो it's like what is your storytelling, what is the intent for storytelling. करेक्ट. तो वो important है, तो वो should match. I think so. It somewhere goes back to the question where we were discussing. Rather, जब आपने ये बात कही कि आपके लिए function is important. So Correct. it is about again So function. it's about function, and then sometimes more than function, it's important how better, how well you're doing that function. Right. So इसीलिए मेरे लिए वो एक्सपीरियंस आ जाता है कि एक्सपीरियंस, आप क्या एक्सपीरियंस एडप्ट कर रहे हो, Right. आप क्या इमर्सिव स्टोरी वहां पे नरेट कर रहे हो. सो दैट इज डिजाइन. We were just now talking about minimalism and richness in design. आपने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग अभी adaptive redevelopment project करे, like सवाई मान महल. How do you conceptualize such a redevelopment where the old design philosophy is there, then it has to combine with the modern sensibilities and the functionalities? How does that work? See, as I said, I've been born and brought up in Jaipur. I've lived around these heritage buildings, these palaces, forts, havelis. And I also come from that family background where we have our own heritage house, haveli, in our village. So, to give this experience to the visitor, जी. tourists, that was more important. And we are doing couple of adaptive reuse projects these days. Starting with the Savai Man Mahal, where we did this beautiful project in the Rambagh campus. We are doing some suites in Rambagh. We are also revamping Jai Mahal Palace. We are doing the Lake Palace in Udaipur. We are revamping the Lake Palace. And then Amazing. very beautiful project we are doing in Palitana. It's in Gujarat, and it's going to be Taj Palitana Palace. And there are two beautiful palaces which were built almost 100 years ago. And we are trying to conserve and we're doing adaptive reuse in those buildings, and we're converting those two palaces into a 100-key beautiful Taj Palitana Palace. So the whole idea, again, as I said earlier, to me is to depict the story, narrate the story, I would say. And to narrate the story, you really need to understand the basic concept of the hospitality, or basic concept of that piece of architecture. Right. And once you understand that piece of architecture and what story it has to tell, and if you're able to sense that, and if you are sensitized, if you are personally understood that particular thing, and you're sensitive to that piece of architecture, you will be, as an architect or as a designer, you will be able to narrate that story well. So same happened in case of Savai Man Mahal. The clients, the owners, the family, the royal family, they wanted a place which is different than Rambagh. They wanted an experience which is still part of Rambagh campus, still having that architectural feeling. That was the brief given to us from the owners, and we were able to do a good piece of work there in adaptive reuse. And I think because we've got a lot of heritage buildings in Rajasthan and this part of the country, we are quite sensitive to it. I am personally quite sensitive to it, and we try and preserve and conserve. And I try and not draw a line between conservation and development. I try and mix that particular line. I try and collaborate in these two factors of development and conservation.
and then I try and make a screenplay, or I would say a theater, wherein I'm able to do a nice story. This is a career shift from the regular architecture that you were doing, Correct. and over the years, are you enjoying it? Very much. Hmm. Trust me. I am hell lot enjoying. Hmm. And I said in my first question, I wanted to be into hotel management. So I think Okay, yes. something was there in Yes. my heart, my soul. Hmm. These hotels or the hospitality Hmm. inspires me, excites me, fascinates me, I would say. And I'm a very candid traveler. I travel a lot. I try and visit a lot of places. I try and stay in a lot of variety of hotels or resorts, for that matter, to understand their story, their experience, and try and see and I try and taste their cuisine. And so this is very personally, I'm very attracted to, fascinated to. And again, as the economy is booming, the hospitality sector is booming, there is a paradigm shift from the foreign FITs to domestic FITs. So I think we are also going as per the direction in which our economy is going. So there has been a change. There has been a change. Long back, like I think 12, 15 years, we did a small 4-star property. And then we did the JW Marriott Kukas, which is now the Leela Palace, Jaipur. And these two projects basically set a benchmark. And then after that, we started doing a lot of hospitality projects. And I think I am enjoying, my team is enjoying. We, Ashwini, earlier we never used to do interiors. Now we are Right. doing interiors of these 5-star hotels. Right. I think I have hardly done interiors of any bungalows, maybe one or two, because these interiors never excited me. The interiors of the residences, the flats, never excited me. Never excited me. But the interiors of my guest rooms, my restaurants, my bar, the reception lobby, they excite me. They excite me. Hmm. And I'm so happy that, and I'm in the right, I think, spare, where I'm really enjoying myself. But we've been doing other projects also. We're doing some schools, we're doing some multiplexes, malls, high rises, condominium. That's our forte. We're doing some projects internationally also. Hmm. But hospitality definitely is very close to my heart. And I really enjoy. I really enjoy. Great. You mentioned that you're doing a couple of projects overseas. How is it different from here? See, we are basically working in Africa. Right. One thing great about that particular continent is it's developing very fast. Right. Yes. And they don't have proper housing solutions. We're doing some housing projects. We're doing some office complexes also. So, and then they are not very strict on the bylaws, set of bylaws. So that freedom which you were earlier talking about, मुझे वो freedom है वहाँ पे कि मुझे कैसे building बनानी, which shape I had to take, what setback I need to leave, what height I can. So I decide the form, I decide the shape, I decide the elevation, and then we try and fit in as per our design. So I'm really again enjoying that portion of my career at the moment, wherein there are no strict rules on my building shape. It's like a blank canvas, and you Correct. have the freedom. So I can splash the color, I can paint through a thick brush, or from a thin brush, I can mark with a marker. Right. So the platform is quite big. Yeah. Great. So we are talking about that you love to travel, and now that you're enjoying this current phase of your career, what's your take on ecotourism or sustainable tourism which is happening, and how is it shaping, or rather how do you see it being influenced by architecture, or rather architecture being influenced by it? See, people have not understood the concept of sustainable tourism. See, tourism is basically run by the private players. The hospitality, the hotel projects are basically, they are done by the private players, and they really don't understand that ecotourism. Or I would say the right word would be the sustainable tourism. Post-COVID, this concept got a huge boost because people wanted to spend on
tourism. They wanted to live that life. They wanted to stay close to the jungle or the nature. And this whole concept have been evolved in last couple of years. I'm a strong believer of sustainable tourism, wherein we are able to still do that immersive storytelling, but still we are not doing a lot of construction, or we are not basically bypassing the basic concept of nature, which is happening in certain areas, maybe Pushkar, Ranthambore, certain places which are being overcrowded now. So, but what would happen? The only responsible here would be the government, because they need to think about it. Right. Because on the town planning level, government can only impress or influence. Private players cannot. Private players will only think about their own plot, what they're getting out of that. So that sustainable tourism, it's a new subject. I think not properly worked upon. इस पर ढंग से काम नहीं हो रहा है, और आई थिंक उस पर काम करने की आवश्यकता है. हम लोग अभी इको टूरिज्म और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की बात कर रहे हैं. वेयर डू यू थिंक द architecture of Jaipur is in comparison to other cities? You have traveled far and wide. You have been to a lot of places. I don't know if you remember all the countries or not you have traveled, but आपको कहाँ लगता है कि जयपुर है in comparison to the world? हमारे पास अश्विनी जी जो चीजें हैं वो किसी के पास नहीं. Is it? पर जो हमारे पास चीजें हैं हम उसको ढंग से सहेज के नहीं रख रहे. वी आर नॉट कीपिंग देम वेल. वी आर नॉट प्रिजर्विंग देम वेल. एंड आई एम रियली नॉट श्योर कि हम हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए क्या छोड़ने वाले हैं. जयपुर वॉल्ड सिटी वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर है. Right. और क्या हाल वहां पर अभी है वो आपको सबको पता है. प्रिजर्वेशन आर्किटेक्चर को पोतना, रंग को पोत देना, वहां पे लाइट लगा देने से नहीं होगा. ऐसे नहीं. वहां पे टेंजिबल एक्टिविटीज करनी पड़ेगी. आपको सबसे पहले उसको डीकॉन्जेस्ट करना है. वो डीकॉन्जेस्ट कैसे करना है वो करना पड़ेगा. आपको वहां पे कॉमर्शियलाइजेशन को कम करना पड़ेगा. वहां की कुछ चीजों को प्रमोट करना पड़ेगा. आप लोगों को इंसेंटिव्स दो कि आप हवेली बना रहे हैं, रेनोवेट कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं, आपको 5 साल का टैक्स माफ किया या 10 साल का टैक्स माफ किया, या कुछ भी आप उनको बाउंटीज दो. गिव देम बेनिफिट्स. ट्रैफिक को कम करो. जो ट्रैफिक है उसको ऑर्गेनाइज करो, ऑगमेंट करो. आई थिंक वो नहीं हो रहा है. एंड वी आर नॉट एबल टू प्रिजर्व इट प्रॉपरली. देयर फ्यू गुड सिटीज इन द वर्ल्ड. पराग है फॉर दैट मैटर, और आई वुड से बुडापेस्ट है. स्विट्जरलैंड में उसकी जो कैपिटल है बर्न, बड़ी अच्छी सुंदर, उसका जो पुराना जो सिटी है बड़ा अच्छा कोर उन्होंने उसको डिजाइन करके रखा है. मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी हमको प्रिजर्वेशन, कॉन्जर्वेशन पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा. आमेर जैसा इतना खूबसूरत टाउन है हमारे पास, क्या हो रहा है काम? कुछ भी काम नहीं. कौन से टूरिस्ट को हम वहां ले जाके क्या दिखाते हैं? और टूरिस्ट के लिए वहां पे क्या फैसिलिटीज, हमने क्या प्रॉपर टॉयलेट्स दिए हैं, क्या पार्किंग है, क्या? आज आप जलेब चौक में चल जाओ, वहां पे आप हालत देखो क्या है. पार्किंग डेवलप नहीं है. तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग ह्यूजली मिसिंग. और हमारे पास जो एक सिटी है पूरा अपने आप में, पिंक सिटी है हमारे पास में. हमारे पास आमेर फोर्ट है, नाहरगढ़ है, हमारे पास जयगढ़ है, हमारे पास आमेर फोर्ट है, आमेर कस्बा है पूरा. मुझे लगता है कि हमें बहुत स्ट्रिक्ट काम करने की आवश्यकता है, वरना हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ नहीं पाएंगे. हमने 300 साल ऑलमोस्ट निकाल दिए. ये अगले 300 साल क्या, अगले 30 साल बाद क्या हालत होगी मुझे नहीं पता. And I am really not sure what I'm going to leave for my son and what he's going to leave for, what he would be able to leave for his own children. So मुझे ऐसा लगता है कि हमें we'll have to think, और बड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा. और ये टूरिज्म हमारे लिए बहुत ब्रेड एंड बटर लेके आता है, बहुत एम्पल अपॉर्चुनिटीज लाता है. ये हमारे लिए खूब एम्प्लॉयमेंट लाता है. हमारी ग्रोथ बहुत कई चीजों की डायरेक्ट इनडायरेक्टली इस टूरिज्म से जुड़ी हुई है. आई थिंक हमें उस पर काम करना पड़ेगा, और आई थिंक काम हो नहीं रहा है. आई फील सैड. मैं जब देखता हूँ आई फील सैड. From this, I have a little, I would say, a little controversial question, and that is, there is a structure coming right behind Albert Hall.
विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये किसका कंसीव्ड आइडिया है. आई थिंक जो डिजाइनर्स का है या आर्किटेक्ट्स का है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है. पर मुझे कई बार बहुत दया आती है कि उस रोड पे, आपको मालूम है, उसको जेलन मार्ग पे हाइट रेस्ट्रिक्शन है 20 मीटर की. Right. If I were to make a building, I could not have made building higher than 20 meters. Correct. Few projects came and they were not successful क्योंकि वहाँ हाइट नहीं थी, हमने काम ही नहीं किया. And suddenly I find कि वहाँ पे एक 100 मीटर का एक स्काई स्क्रैपर्स खड़ा हो रहा है. And अगर आप उसकी आर्किटेक्चर को भी देखें, it's not aligning to the architecture of the Jaipur city. वो हो भी नहीं सकती. आज इतनी ऊंची बिल्डिंग हमारी जयपुर से लिंक भी कैसे करेंगे? एक ईसर लाट हुआ करती. ईसर लाट टाइप भी बनती तो मैं मान लेता था, पर ये तो कुछ और ही लाट बन गई. और मुझे लगता है कि अभी भी वो हॉस्पिटल अगर हॉरिजॉन्टल बनता तो बेटर था. एंड आई डोंट सी दैट वाज द रिक्वायरमेंट. विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, देयर वाज ऑलवेज दिस जॉय. जब भी वहां पे रामनिवास बाग से ड्राइव करते जाते थे, सामने एल्बर्ट हॉल आता था. एक बड़ा एक सेंस ऑफ अचीवमेंट या प्राइड होता था. अब वो डाइल्यूट हो गया, वो गायब ही है. गवर्नमेंट की पॉलिसी को आप उस पर बात नहीं कर सकते. देयर वॉज नो डिस्कशन ऑन दैट. नोबडी आस्क्ड फॉर पीपल्स ओपिनियन एंड नोबडी बेसिकली, द गवर्नमेंट डिडंट इंटरैक्ट विद द लोकल पीपल एंड दैट हाउ इट शुड लुक. और मुझे लगता नहीं कि एक प्रॉपर स्टडी भी उस पर हुई थी. आज हम कोई ब्रिज बनाते हैं या कोई रूट बनाते हैं मेट्रो, तो उसकी बाकायदा एक डीपीआर बनती है. Right. एक उस पर एक एनालिसिस होता है. आई थिंक वो एनालिसिस नहीं हुआ. एक वो इम्पैक्ट असेसमेंट, दिल्ली के अंदर एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है. कोई भी प्रोजेक्ट जब आता है उनको एक परमिशन लेनी पड़ती है फ्रॉम दी, एक आर्ट कमेटी है उससे, कि वेदर दिस विल नॉट इम्पैक्ट अपॉन the art committee of that. I'm just forgetting the name of that committee, but I think that wasn't thought of, and I really feel sad for it. I really feel sad. Yeah. मतलब अभी आपसे बात करते करते भी मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि वो पीछे अब वो फोटो बनती नहीं है. अब वो फ्रेम में वो तो लोगों को नहीं, तो अब फिर फोटोशॉप करोगे आप उसको. अब हम फोटोशॉप करके आप हटाओगे उसको, टावर को हटाओगे, या फिर अब दूसरे एंगल से फोटो ली जाती है. Maybe I really feel bad about it. That whole skyline has changed. Right. तो हम बात कर रहे थे जयपुर के हेरिटेज के. कोई और शहर जो कि आपको अट्रैक्ट करता है? मुझे एक शहर ने हमेशा अट्रैक्ट किया, अगर मैं इंडिया से बाहर की बात करूं तो वो है लंदन. ओके. क्योंकि वो भी हेरिटेज लाइंस पे बना हुआ शहर है और मुझे वहाँ पे इंडियन खाना खूब जगह मिल जाता, तो मुझे पसंद है वो. आई माई सेल्फ ए बिग टाइम फूडी एंड आई एंजॉय वैरायटी ऑफ फूड्स देयर. आई हैव गॉट मेनी फेवरेट रेस्टोरेंट्स आउट देयर. तो मुझे लंदन बड़ा पसंद है. अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ सालों से जा नहीं पा रहा हूँ, बट मुझे लंदन बड़ा पसंद है. अगर मैं जब इंडिया से बाहर कोई एक पसंदीदा शहर की बात करूंगा तो वो लंदन हो सकता है. So recently, Gyani ji, you got featured in A+D, top 50 designers. How does it feel personally and professionally to you? मुझे ऐसा लग रहा है कि उस हॉट 50 में आने के लिए मुझे 27 साल लग गए. I have taken it that way. Maybe it's a big feat, but when I see my peers, my contemporary there in that list, I think people with 10 years, 15 years experience, they are also there. So मुझे लग रहा है कि I think I am a bit late there. Okay. My entry is late. और मैं वहाँ देखूंगा तो मेरे जितने एक्सपीरियंस के लोग शायद लिमिटेड हैं, ज़्यादातर यंग जनरेशन है. तो आई थिंक, पर वो ठीक है, देर है दुरुस्त है वाली बात है, बट आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक वी वर डूइंग समथिंग रॉन्ग समवेयर, या हम कुछ चीज ढंग से नहीं कर रहे थे, या कुछ भी बोल सकते हैं. या तो मुझे ऐसा लगता है कि आए तो ठीक है, एक हम्बल फीलिंग तो है. आई थिंक आई फील माई सेल्फ लकी. चलिए A+D ये तो हो गया, कोई नेक्स्ट एस्पिरेशन है आपके पास में?
नॉट एज सच, मतलब पब्लिश होना या आना उनमें इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट. इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट इज टू डिलीवर. एंड राइट नाउ वी आर डूइंग सम ऑफ द interesting hospitality projects, and I'm looking forward of delivery of those projects. I mean, beautiful projects we are right now involved in, and process चल रहा है, construction चल रहा है, कहीं approvals में है, कहीं पे उनका interior चल रहा है. तो 2-3-4 साल बाद ये सारे projects मुझे लगता है धरातल पे आने चाहिए. And I'm looking forward to those interesting projects which we are doing right now. टूरिज्म की हम बात कर रहे थे. योर सन अभिक्रम, वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है. सो एक क्यूरियोसिटी है, आर वी गोइंग टू सी हिम समटाइम सून एट आइडियाज? Yeah, definitely. You would see him this Monday onwards. He'll be joining us for his internship. He's now completed his 4th year of architecture. Okay. He'll be completing his Bachelor of Architecture next year. Mm-hmm. And I think then he plans to do maybe 1 year or 2 years. He wants to do his masters. This is what he's contemplating at the moment. But yeah, in like couple of years, he should be in Ideas helping us and working with us. So young design sensibilities would be there at Ideas soon. Yeah, we are looking forward to that. We're looking forward to that new young blood. Though we have got some young team members. But coming at this level and he coming, I think will be adding a feather in the ideas, and I'm really looking forward to it. आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मैं पूछना रहता हूँ. ये मैं जनरली मैं भी फील करता हूँ. व्हेन वर्किंग विद द यंगर जनरेशन, कभी एक कन्फ्लिक्ट ऑफ डिजाइन या एक पर्सपेक्टिव डिफरेंस, कभी वो आप महसूस करते हैं? हाउ डू यू टैकल इट? So I always believe in team working, राइट. team bonding and team working. और मैं हर किसी के आइडिया को या एडवाइस को सुनता हूँ. And when we take up a project, so we sit, I mean all the senior people and the team, we would sit and we would debate on the project. We will debate upon the outcome of that project and the attributes of design of that particular project. And I listen to everyone, and we take a collaborative decision. No doubt. Sometimes my junior colleagues might also suggest something interesting, and yeah, it's not like that they are not able to give their advice or speak up. Or we are for that matter quite democratic in approach. हम लोग आपका सोशल मीडिया बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं. यू हैव मेड क्वाइट अ फीट ऑफ इट. व्हाट आर योर ट्रैवल गोल्स? एंड वी ऑफन सी यू इन विल्डरनेस और इन जंगल्स और अवे फ्रॉम द होल अर्बन सीन. क्या इसके पीछे क्या? So last week also I was in jungles. I was Bandhavgarh. jungles of Panna and Bandhavgarh. I was Right. visiting those beautiful tiger reserves. I think मैं मेरी first wedding anniversary में 1st December 2002 I went to Ranthambore. ओके. और मेरी जब 21st wedding anniversary हुई थी, that was in 2022, I again went to Ranthambore. ओके. So I go to Ranthambore or these wilderness, मतलब हर दूसरे तीसरे महीने चौथे महीने में मुझे जाना पड़ता है. और मुझे क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि हम यहाँ ऑलरेडी इतने कॉन्क्रीट जंगल्स बना रहे हैं. राइट. हम यहाँ पे इतनी बिल्डिंगें बना रहे हैं, स्काई स्क्रैपर्स बना रहे हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना रहे हैं, इतना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि मुझे उसको बराबर करने के लिए, आई वुड से टू सैनिटाइज करने के लिए मेरी दिमाग की मेरी फिलॉसफी को और मेरे जो अंदर का जो मेरा डिजाइनर है उसको सेटिस्फाई करने के लिए मुझे नेचुरल जंगल्स में जाना पड़ता है. और मैं वहां जाके अपने आप को रिबूट करता हूँ. आई फील रिजुविनेटेड. आई हैव ट्रैवल्ड टू वेरियस नेशनल पार्क्स. आई हैव ट्रैवल्ड टू कबीनी, आई हैव बीन टू सतपुड़ा, बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा. आई हैव बीन टू रणथंबोर, सरिस्का, अपना Kumbhalgarh. I've been to Jamai. I go to Jamai twice a year, Right. at least twice a year. Then I have traveled to Kenya, Masai Mara. तो मुझे वहाँ जाके और इस तरह के close to
wilderness, close to jungles, close to these animals. And Jhalana also. I go to Jhalana quite often. I mean, अपने यहीं पे ही जंगल है और इतना beautiful जंगल है. So even if I'm not able to see a tiger or a leopard in the wild, I enjoy the beauty of the jungle. वो जो मुझे ना वो बैठे बैठे ही मतलब जैसे भी मैं बांधवगढ़ गया, बांधवगढ़ में जंगलों में था, वहाँ पे इट्स ए साल ट्री जंगल, हमेशा ग्रीन रहता है 12 महीने. और हम एक मिडोज में खड़े थे, वहाँ पर पानी नदी बह रही थी और टाइगर हमें बहुत टाइम से नहीं दिख रहा था. वी वर ट्रैकिंग सो वी वांटेड टू हियर दो साउंड्स एंड दो चर्पिंग ऑफ बर्ड्स. और कोई कॉल आ रही है क्या, तो हमने वहाँ बैठ के वी वर हैविंग टी. सो फॉर मी दैट इज इम्पोर्टेंट. मैं जंगल में बैठा हूँ, चाय ले रहा हूँ, कुकी खा रहा हूँ, enjoy कर रहा हूँ. So I really enjoy that. So I prefer traveling to these jungles than anywhere else. I mean, given me a choice that one trip to Paris or one trip to Masai Mara, I would prefer Masai Mara than the trip to Paris. So ज्ञानेंद्र जी, अब कुछ रैपिड फायर करते, कुछ इंटरेस्टिंग सवाल जवाब हो गया. तो here is the first question. Your personal favorite project done by you? The Leela Palace, Jaipur, which was actually designed as JW Marriott, Jaipur. Right. One project that you wish you had designed? I would say this tall building. I would not have done this tall OPD, IPD tower there. So I wish I would have designed that building. Okay. Because I would not have done that IPD. I would have done that IPD, but not as At a skyscraper at this level. Yeah. One project of yours that you would like to redesign now? One is by my own house, which was my first project. I think I would say this is one project which I would like to redesign at the moment. But अगर मैं यूं बात करूं तो the other project which I would like to redo at the moment could be this Pinnacle building where we are sitting right now, because I think this is a residential building at a wrong place. This should have been a commercial building because you are on a very busy road. So now here is a catch question. Sujan or Taj? This is quite tricky. This is quite tricky because Sujan is wilderness, Taj is luxury. I want marriage of these two. So pick one. So it will be very difficult for me, but yes, I would go for Sujan. Sujan or Leela? I would still go for Sujan. Okay. Tea, coffee or whiskey? Again, depends where. No. Where are you? Yeah. So you'll have to give me a time. You'll have to tell me, because everything is contextual. If it is evening, I would prefer whiskey. Right. If it is fine morning, I will prefer tea. And if it is something like this, I would prefer a coffee. Do you have a favorite brand in whiskey? Macallan. Macallan. Okay. One product. And Glenmorangie. Glenmorangie. Glenmorangie, yes. Okay. One product that you can't live without. One product. I think iPhone. Okay. Early morning walk or late night drive? Late night drive. Okay. Have you ever felt like walking out of the meeting in frustration? Yes, many times. But I think I have this in me that I try to overpower, because I think I speak a lot. I speak very confidently. So I think I try to manage it. ऐसा कभी हुआ नहीं कि I try to walk out of the meeting. मैं उसका हिसाब वहीं पे करना पसंद करता हूँ rather than walking out of the business.